Welcome to the Commerce Professionals. So, the topic for today's discussion is small scale industry. So, before starting the topic, we must understand the meaning of the word industry. So, what is an industry? Industry refers to that part of business activities which is concerned with the production of satisfying goods through the utilization of available material and other resources. The industry utilizes the natural resources and brings them into the form useful for final consumption or for further use. Industry mainly क्या है? It is a process, it is an activity which converts the raw material into finished goods. ऐसी particular activity या ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आप रॉ मटेरियल को एक कच्चे माल को जब आप कन्वर्ट करते हो इनटू अ वेल फर्निश्ड finished good, उसको कहा जाता है इंडस्ट्री. So in industry we have two types. One is large scale industries and other is small scale industries. Large scale industries वो industries होती हैं जब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जो हमारा जितना भी सारा पैसा लगा है, अगर वो पैसा 1 करोड़ से ज़्यादा लगा है तो उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे. जब अगर हमारा वो पैसा मशीनरी खरीदने में, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में, लेबर एम्प्लॉय करने में, टेक्नोलॉजी लगाने में, अगर वो पैसा हमारा 1 करोड़ से कम लगा है तो उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे. नाउ वी विल स्टडी the term small scale industries. Small scale industries are those industries in which the manufacturing, production and rendering of services are done on a small or micro scale. बहुत ही छोटे लेवल पे काम होता है जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स चीज़ का बनना, the production of a thing, and rendering of services. Sometimes we provide services. We are not dealing in goods, but we provide the services. That is also considered as an industry. और ये काम जो हम कर रहे हैं ये बहुत ही small, बहुत ही micro level पे कर रहे हैं. These industries make a one-time investment in machinery, plant and industries, but it does not exceed rupees 1 crore. As I have already said that कि जो भी हमने investment की है इस particular industry में वो टोटल हमारा खर्चा 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाता है. The small scale industries are generally comprised of those industries which manufacture, produce and render services with the help of small machines and less manpower. Obviously because आप small scale level पे काम कर रहे हो, आपकी मशीनरी भी कम लगेंगी और आपके काम करने वाले लोग, मैन पावर, लेबर, वो भी बहुत ही कम लगते हैं. These enterprises must fall under the guidelines set up by the Government of India. So there are some characteristics of small scale industries. As you can see, there are 6 characteristics starting with the word point ownership. Ownership because ये small level पे काम करती हैं, इसको own भी एक normal sole proprietor करता है. Sole proprietor वो person है जो singly own करता है एक organization को. He is the single owner of the organization and वो अपने level पे ही सारा काम करता है, तो ownership is in the hands of that sole proprietor. Second is management. Management is done by that person जो कि उसको own कर रहा है. He will manage all the activities. He will procure the raw material. He will process the raw material. He then will manufacture the finished good from that raw material and ultimately he will sell it to the customers. Third is labor intensive because ये जो small scale industries हैं ये small level पे काम करती हैं, तो जितना भी इनका टेक्नोलॉजी यूज़ होती है that is mostly labor intensive. ये लेबर का यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन करते हैं. मोस्टली सारी इन मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर जो भी काम किया जाता है वो मैनुअली किया जाता है, मैनुअल लेबर यूज़ करके, रादर देन यूजिंग कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन कल्चर. वो मैन मेड सोर्सेज का यूज़ नहीं करते हैं, लोगों से काम करवाते हैं, लेबर को एम्प्लॉय करते हैं. नेक्स्ट इज लिमिटेड रीच बिकॉज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर वर्किंग एट अ स्मॉल लेवल, तो उनकी रीच, उनके कस्टमर्स भी कम होते हैं. दे हैव अ वेरी नैरो स्कोप, बहुत ही छोटे लेवल तक वो काम कर पाते हैं, एक लोकेशन कवर कर लेते हैं या एक रीजन कवर कर लेते हैं. नेशनली या इंटरनेशनली वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काम नहीं कर पाती हैं बिकॉज द रिसोर्सेज आर लेस. देन इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन. ऑब्वियसली जो उनकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर होती है, मिनिमम होती है ये भी कह सकते हैं हम, बिकॉज लेबर भी कम लगाई जा रही है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा नहीं लगाई जाती. जो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं दैट इज़ ऑल्सो इन
लिमिटेड क्वांटिटीज़, बिकॉज ये काम छोटे लेवल पे हो रहा है तो सारी रिक्वायरमेंट्स ही हमें लिमिटेड चाहिए होती हैं, ह्यूज रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है. एंड लास्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑन अ स्मॉल स्केल लेवल एंड उसका एक ही ओनर है एंड द ओनर इज़ द मैनेजर ऑल्सो, तो वो फ्लेक्सिबल है. मीन्स अगर उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है एंड द बिजनेस इज नॉट रनिंग एज पर हिज एक्सपेक्टेशंस, देन ही कैन स्विच टू अनदर टेक्निक. वो अपनी टेक्निक चेंज कर सकता है, वो अपना प्रोडक्ट चेंज कर सकता है. तो दिस इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबल थिंग विच इज़ अ क्वालिटी टू हिम. उसको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, एज ही हिमसेल्फ इज़ द ओनर एंड जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है वो उसने खुद ही करनी है. Next we have how to start a small scale industry. So there are a number of steps. First we will start with the idea of self-employed. सबसे पहले एक self-employed person सोचता है that I have to be self-employed. एक normal person सोचता है कि मुझे कोई काम करना चाहिए. Then the idea strikes in the mind of that person कि ठीक है मुझे काम करना है, I will set up an industry. Then is he will do environmental analysis. वो environmental analysis करता है. कैसे? वो ये देखता है कि मार्केट में कैसे कैसे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, कैसा हमारा मार्केट है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए. इफ़ ही गॉट एन आइडिया कि हाँ मुझे काम करना चाहिए और मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करूँगा, तो व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटीज़ गिवन टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. अगर मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाता हूँ तो मुझे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए. He will study the incentives and concessions being awarded by the government agencies to such people जो कि small scale industries start करते हैं. Then the selection of a product. He will decide what kind of product his industry is going to manufacture. कौन सा प्रोडक्ट उसकी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करेगी, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, और उसके हिसाब से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करेगा. देन इज सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ ही विल डिसाइड वेदर ही वांट्स टू रन an organization on a sole level, single level, or he wants to do a partnership, or he wants to start a company. Such kind of decision has to be taken in this point, selection of organization, कि क्या उसने अकेले ने काम करना है, सोल प्रोपराइटरशिप खोलनी है, क्या वो एक पार्टनरशिप में काम करना चाहता है, अपने साथ 3-4 बंदे इन्वॉल्व करके दे वांट टू वर्क, या फिर वो एक कंपनी खोलना चाहता है. कंपनी में क्या होता है कि पैसा, obviously the person also employs some kind of resources, financial resources, but also he raises money from the public. वो लोगों से भी पैसा लेता है कंपनी के केस में. So such kind of decision has to be taken under this point. Next is he will prepare प्रोजेक्ट रिपोर्ट. प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ एन आउटलाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट कि आपने क्या करना है, कहाँ से रॉ मटेरियल आपने एक्वायर करना है, कहाँ कैसे कैसे आपने एम्प्लॉयज़ लगाने हैं, वेदर द एम्प्लॉयज़ विल बी स्किल्ड एम्प्लॉयज़, वेदर द एम्प्लॉयज़ विल बी अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यू रिक्वायर्स, कैसा आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या लोकेशन होगी, क्या आप कहाँ से फाइनेंस कराओगे अपना पैसा. These are the certain kind of things which are to be added in the project report. Next is he will decide about the location of the enterprise कि आपकी क्या जॉब ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हो उसकी लोकेशन क्या होगी. The location must be something like that जो कि रॉ मटेरियल एक्वायर करने की जो प्लेस है उसके बिल्कुल पास हो, ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचे. ऑल्सो जो लोकेशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट के भी पास हो, बिकॉज जैसे ही सामान बन जाएगा, रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा फिनिश्ड गुड के अंदर, तो वो सामान जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचे और सेल आउट हो जाए. नेक्स्ट इज द रजिस्ट्रेशन. ऑब्वियसली नाउ इज़ द टाइम टू रजिस्टर द यूनिट. तो रजिस्ट्रेशन में आपका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है दैट हैज़ टू बी अंडरगॉन थ्रू 2 मेजर स्टेप्स. First is the provisional registration and then is the permanent registration. जो provisional registration की जाती है वो सेटअप करने से पहले, यूनिट को सेटअप करने से पहले करी जाती है, and the permanent registration is being done after the unit is being set up. Next is arranging finance, technology and other things. Now in this point you have to arrange the finance because if you are starting a company you need लॉट मोर्स ऑफ फाइनेंस. आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है एंड वो पैसा आपने कैसे अरेंज करना है, वेदर टू बोरो इट फ्रॉम योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, और फ्रॉम अ बैंक, और फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और यू वांट टू रेज मनी विद द इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स.
Such kind of decision has to be taken under this point. Also आपने टेक्नोलॉजी में क्या क्या मशीनरी लगानी है, इफ़ यू वांट टू गो कैपिटल इंटेंसिव, कौन कौन सी मशीनरी आप एम्प्लॉय करोगे. ऑल्सो यू हैव टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, उसके लिए भी आप अप्लाई करोगे. Next is the recruitment of the workers. Now in this point you will decide upon कि which type of workers you needed the most for this kind of industry. क्या आपको skilled labor चाहिए, क्या आपको semi skilled labor चाहिए, क्या qualification चाहिए आपको अपनी labor को employ करने के लिए. आपकी लेबर को कैसी नॉलेज होनी चाहिए, whether they should be technically educated or whether they should know only the clerical work, what kind of employees you want to एम्प्लॉय. नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट. इस पॉइंट में आप रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करोगे, कहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, कितना सस्ता मिल रहा है, किस क्वांटिटी में मिल रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है. Such kind of decision has to be taken in this point. Next is you will market your product. The business is successful only when it is marketed to the customers. जब तक आप बिजनेस को बढ़ाओगे नहीं, कस्टमर्स तक उनको बताओगे नहीं दैट यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो कोई भी कस्टमर आके आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. तो यू हैव टू undergo some ways to communicate to the customers that you are offering such and such product. Last is profit generation. A business is incomplete without earning profits. So the business is set up with the aim of earning profits. तो profit earn करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, and profit is the main aim of any business activity. One must focus on reducing the cost of production and selling more and more products so that the profit percentage rises up and the business will go on forever. Next, we will study the registration procedure of small scale industries. So I have already told you that this consists of two steps. One is the provisional registration, second is the permanent registration. So when the organization, when the small scale unit is going to be set up, इट्स नॉट येट सेटअप, अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी सेटअप नहीं हुआ है प्रॉपरली, बट उस टाइम पे आपको प्रोविजनली रजिस्टर करना पड़ेगा. किसके पास? यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन विद द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, DIC के पास जाके आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी. उस एप्लीकेशन में जो आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आएगी, जो डॉक्यूमेंटेशन बन के आएगी, वो विद इन अ वीक आ जाएंगी, एंड दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट इज़ टू बी वैलिड फॉर 1 ईयर, एंड वो 1 साल से एक्सटेंड हो सकता है अगले 2 सालों में भी, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप होने पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो. एंड व्हाट काइंड ऑफ documents you are required for provisional registration. This is the application form to be filled by the obviously the owner. Then is the project profile की कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स. एम्प्लॉय को, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने जा रहा है, उसका कोई डायरेक्टर है या उसका कोई पार्टनर है, सोल प्रोपराइटर है, ही हैज़ टू सेट अप सच काइंड ऑफ things and provide 3 passport size photographs. Then is the residential proof of the person. Affidavit is a legal document which has to be prepared from court. Then is the photocopy of partnership deed. अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस मैंने आपको बताया था जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं एक बिजनेस में, दैट इज़ अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप बिजनेस. तो उस केस में अगर पार्टनरशिप डीड आपको सबमिट करनी पड़ेगी. दैट डीड इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स दैट व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कितना पैसा हम तुम लगाओगे, कितना पैसा हम लगाएंगे, हमारा लोकेशन कहाँ पे होगी, हमारी पार्टनरशिप का नाम क्या होगा, व्हाट विल बी द वेरियस फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच एंड एवरी पार्टनर. And last is the MOA or AOA in case of a company. MOA is Memorandum of Association and AOA is आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. दीज आर द 2 लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी. ये अगर आप कंपनी सेटअप कर रहे हो तो ये 2 लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको सेटअप करवाने पड़ते हैं, बनवाने पड़ते हैं. दीज आर जनरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. MOA में मेनली ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड AOA इज़ मेनली कंसर्न्ड फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि आपका इंटरनल लेवल पे क्या सीन होने वाला है, कैसे आप काम करोगे, कैसे एम्प्लॉयज़ आप रिक्रूट करोगे, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. नेक्स्ट इज़ द परमानेंट रजिस्ट्रेशन. परमानेंट रजिस्ट्रेशन तब होती है जब ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो चुकी है. तो अंडर परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपको फिर से DIC यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के पास जाके अप्लाई करना पड़ेगा, एंड उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के टाइम पे एक इंस्पेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा हु विल इंस्पेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन.
एंड अल्टीमेटली आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा. एंड दैट पर्टिकुलर परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज़ अ वन टाइम सर्टिफिकेट एंड इसकी कोई भी रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो उस केस में भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे. Documents can be the photocopy of purchase invoice of machinery and raw material कि आप परचेज कर चुके हो मशीनरी भी, रॉ मटेरियल भी, उसका परचेज इनवॉइस यानी बिल. देन इज द एफिडेविट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, लीगल डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट प्रोफाइल वो जो आप ऊपर सबमिट कर चुके हो. देन एन एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आप किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो. मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी खुद की नहीं है, आपने ओन नहीं की है, यू आर रेंटिंग इट आउट, आप किसी लैंडलॉर्ड से वो चीज़ रेंट पे ले रहे हो एंड उसके लिए आपको लैंडलॉर्ड से एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एंड दैट हैज़ टू बी सबमिटेड टू डीआईसी. Also same things, partnership deed की photocopy and MOA and AOA की photocopy. So the topic is complete. If you have any doubts, you can ask me out on the comment section. And thank you for watching this video. Keep sharing. Thank you.